बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, टेलीफोन उठाइए, नंबर डाल कीजिए, मैं हाजिर हूं, मैं आपसे बात करूंगा। प्राइवेट कंसल्टेशन चाहते हैं, प्री बुकिंग नंबर पे जाएं, अपना फोन नंबर, अपना नाम छोड़े, शो के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, आपसे बात करूंगा। लेकिन लाइव शो में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपका खैर मकदम करता हूं। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। अपने हस्बैंड ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। हाँ जी, नाम की है उन्होंने? ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। डेट ऑफ बर्थ की है जी? 10 अगस्त 1984। टाइम ऑफ बर्थ की है जी? 2 ਵਜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ। दोपहर दे? ਹਾਂਜੀ। पैदाइश किस जगह से हुई है? ਇਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। लुधियाने च पैदा हुए हैं। ਹਾਂਜੀ। हाँ जी, कुलदीप सिंह जी के बारे की पूछना चाहते तुसी? ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ये सारे बाहर आ सकते हैं, ਅੱਛਾ ਜੀ। आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन इस साल बन सकते हैं ना काम। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ? रुकावट तो नहीं, पर थोड़ी पुरुषार्थ करके काम बन जाना है ना। हाँ जी। थोड़ी एफर्ट पाके काम बन जाएगा। ठीक है। रुकावट तो नहीं है, थोड़ा बहुत है इशू, इन्हों दा बन सकता है काम में। लेकिन इन्होंने अप्लाई किया करता है, करना है? नहीं, पहला ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ, ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਮਨ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਯਮਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਵਿਚਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ 1 ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਮਈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਲੈਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 19 ਮਈ 2013 ਤੱਕ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਆ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜੀ। ओके, मैं उन्होंने ये कहना चाहूंगा, कोशिश करें चांदी दी 2 डब्बियां रखन अपने कोल। अपने कोल चांदी दी 2 डब्बियां रखनी है। चांदी के 2 बॉक्स बनवाने हैं। एक बॉक्स के शहद भर लेना है। शहद? हाँ जी। एक बॉक्स के 7 चौरस टुकड़े पाने चांदी दे, ते नाल पा लेना उस बॉक्स के पाना दरिया का पानी, ते नाल 7 चांदी के चौरस टुकड़े पा के अपने कोल रखन। चांदी के 2 बॉक्स बनवाने हैं, डब्बियां बनवानियां चौरस। एक दे विच शहद भर लेना है, एक डब्बी दे विच दरिया का पानी पा के ओदे विच 7 चांदी के चौरस टुकड़े पाने हैं।
चार चांदी के चौरस टुकड़े होने चाहिए 1 इंच बाय 1 इंच दे। 1 इंच बाय 1 इंच। हाँ, ठीक है। एक मैं इन्होंने उपाय देना चाहना, वो करन बहुत जरूरी है। हाँ जी। इन्होंने ये कहन जे इन्हों ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਬਲੈਕ ਫੀਮੇਲ ਡੌਗ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा जी। ਬਲੈਕ ਫੀਮੇਲ ਡੌਗ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। घर के मेंबर वांगू सेवा कर। हाँ, पर कुछ ਇਹਦੇ ਉਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਫੀਮੇਲ ਡੌਗ ਦੇ ਲਿੰਕਡ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ठीक है। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਕॉम ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਾਏ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਡੌਗ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ठीक है। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉਪਾਏ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਭਰ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 7 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੌਰਸ ਟੁਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, हाँ जी। ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। अच्छा ये दोनों हाँ दोनों डब्बियां जा- हाँ, ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ठीक है। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ठीक है। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰਨ ਆਉਣ ਦਾ ਡੇਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ 2014 2 ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 2014 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। अच्छा जी। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਫਿਰ 2014 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫੌਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣ। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਦਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਾਏ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਫਕॉम ਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात करेंगे। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। बर्थ रेट है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल। या मेल है फीमेल है? मैं खुद हूँ रिली। ओके, आपका नाम क्या है? विकी। अभिजीत। विकी, VICKY। विक्की, ओके। 14 अप्रैल 1978। 14 अप्रैल 78। 3:51 3:51 PM। 3:51 PM, okay. Place of birth? मुंबई, इंडिया। So which part? मुंबई। Mumbai, okay. हाँ जी, विक्की बात कीजिए। आपसे पहले भी बात हुई थी दिसंबर में या जनवरी फर्स्ट वीक में, और उस बाद सवाल क्वेश्चन कुछ और था, आज क्वेश्चन कुछ और है। मतलब should I stay in UK or should I leave UK and go back to India, or I mean because I'm not getting a job or something, so staying in UK would be good or leaving UK would be good. Okay, let's look at it.
I think after 30th of May, you make a decision like this. But having said that, I think after 30th of May, those kind of issues or problem will be resolved. But my views are independent, nothing to do with anything else. But I would say very strongly, stay in Europe or in West or wherever you can, especially till 2015 December. Okay. But whatever the decision you're going to make, it staying in UK or going back to India, try to do that kind of scenario after 30th of May. Okay. So When the you- suggestion is that don't decide anything right now, just wait up until 30th of May. Sorry? Your suggestion is not to decide right now, wait No. up until 30th of May. I'm actually what I'm doing. I'm waiting for a very prominent movement from your chart. From 30th of May from 30th of May this year till December 2015, Jupiter will join you togetherly. And Jupiter is quite important planet in your chart. It will give you Gaj Kesari Yoga. It will activate quite a lot of good things. It will build up your recognition and appreciation. It will give you you will be recognized and appreciated. And that particular time, Gaj Kesari Yoga trigger in. Okay. And Shani's Mahadasha and Jupiter subspan, that will be very, in my book, that will be very fine field. That will be quite okay field. That will be established time. Okay. You'll be making something good out of that time. Yes, of course. But after 30th of May, that particular phase will carry on, I can say, till December 2015. So this particular time will give you a very fine, very fine base. Whatever you want to achieve, where you want to go, how you want to establish. So that's the time. But your suggested place is anywhere in Europe or in the western side. So At the moment, because the Saturn will take you abroad. Saturn's main the main role at the moment, take you in abroad, and just either you develop yourself in the Europe or in the West. Okay. Saturn represent West. Saturn means we are working with it's like we are working with a multinational companies. We are establishing ourselves outside the India. Okay. That is Saturn. Any possibility of joining the same organization which I left or something? Because it's almost about 12 months, 1 year complete after I left that organization. I think after 30th of May, the new project will be in your hand. Okay. I think I always look for the future. Okay. So your suggestion is not to go back to India right now, at least wait up until 30th of May, after that decided. At the moment, I think all the decisions should be done after 30th of May, because lot of things are held by time. Time is going to reveal you a lot of secrets after that particular time. Okay. What I can look at here, I love to transform what is my observation into words. My words are here, but this is not it. This is not the end. This is just you're going through a journey or phase, and that phase is going to finish on 30th of May. After 30th of May, a new rise is going to start, a new horizon is going to start, a new dawn is going to appear, and you will see another high. Okay. That's my prediction for you. Okay. Thanks a lot. Vicky, please. Hello. It is zero, so Vicky, new high, that is really good news. Thanks a lot. आपने इस चैंटिंग को करना है, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम. आपने रुद्राक्ष की माला के ऊपर इसका जाप करना है 240 माला, 240 माला. अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए 500 माला, लेकिन पूरे एक माला के अंदर 108 बीड्स होते हैं. 240 माला या 500 माला आपको देखना है, लेकिन अगर 240 माला आप कर सकते हैं, आप कीजिए विदिन 8 डेज, आने वाले 8 दिनों में. मान लीजिए आज शुरू कर लेते हैं, नेक्स्ट संडे तक खत्म कर लें. संडे को स्टार्ट करें, संडे को खत्म करें.
तो जब आपका जाप हो जाए, वो दो जो बंडल्स हैं जिसमें 43 आलमंड्स की गिरियां हो, और दोनों को लेके जाएं मंदिर में, और एक 43 का जो बैग है आलमंड्स का वो शिवलिंग पे चढ़ा दें और दूसरे को घर पे ले आएं अच्छा। और उनको येलो या ब्राइट वाइट हैंकचिफ में रैप करके, अपनी येलो, ब्राइट येलो और या ब्राइट वाइट हैंकचिफ में रैप करके अपने घर में सेफ प्लेस पे रख दें। ये उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। और मेक श्योर करिए कि आने वाले 1 साल कोशिश करें किसी तरह की इलेक्ट्रिकल गैजेट्स ना खरीदे। हाँ, refrain from buying any kind of electrical goods, electronic goods. Try not to. Try not to buy, try not to wear too much navy blue color garments. Just 240 malas, what you're talking about, is it essential for me to do it with mala, or we can do it with hand also? आप देखिए कि आप अगर माला से करेंगे तो काउंटिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। तो माला यहाँ पे मिलना वो सब मिलना मुश्किल, रुद्राक्ष माला और सब, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि विथ हैंड ऑल्सो इट्स फाइन, और आप माला यहाँ कैलकुलेट करना है 108 टाइम्स ओनली, राइट? हाँ, जब फिर आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। एंड ऑफ द डे मतलब रुद्राक्ष माला वो सब मिलना मुश्किल है, तो दैट्स व्हाई। तो ठीक है, आप 108 टाइम आप काउंटिंग अपनी ठीक रखें, तो आपने 240 मल्टीप्लाई बाय 108 ऐसा करना है। ओके। वो विद इन 8 डेज में आपने खत्म करना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो 500 8 डेज के अंदर खत्म करें, दैट विल बी मोस्ट इफेक्टिव। नहीं, वी कैन स्टार्ट ऑन मंडे। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तू कि जब मान लीजिए आज शुरू करते हैं तो नेक्स्ट संडे तक वो खत्म होना चाहिए। आप कल से शुरू कर लें, कल मंडे शुरू कर लें, आने वाले मंडे खत्म कर लें। लेकिन जब आप चैंटिंग करें, पूरा ध्यान आपका देवादिदेव के ऊपर होना चाहिए, और जैसे वो आपके सामने बैठे हैं, माता पार्वती और देवादिदेव, आप उनसे बात कर रहे हैं, बस। हाँ। सॉरी, हाँ, ब्लैक सॉल्ट को आपने सैटरडे मॉर्निंग कच्ची जमीन पर दबा दें, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। और इन दो चीजों को करना है कि एक तो ब्लैक सॉल्ट वाला कर लें सैटरडे मॉर्निंग, लेकिन ये आपने जो उपाय मैंने दिया है इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये अपने आप में इसको पूरी तरह फोकस होकर करेंगे, एंड होपफुली यू विल बी सॉर्टेड फॉर गुड। ओके, थैंक यू। चलते हैं कॉल की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, मैं पंडित जी अपने बेटे के बारे में पूछ। हाँ जी, बेटे का नाम क्या है? जी पूरा नाम बताऊं या सिर्फ? नाम बताइए ना। जी मोहम्मद एहतिशाम। क्या नाम है जी? जी मैंने तभी कहा था कि पूरा बताऊं या पहला लफ्ज बताऊं? मोहम्मद एहतिशाम। EAHTISSAM। ओके, और डेट ऑफ बर्थ? जी 6/5/1983। 6 मई जी 1983। टाइम ऑफ बर्थ? जी 2:10 दोपहर। और प्लेस ऑफ बर्थ? जी ये टेप्लो इंग्लैंड। ये कहाँ पे है टेप्लो? जी ये स्लॉक में है। स्लो? जी स्लॉक के पास। ओके ओके। डेट ऑफ बर्थ है 6 मई 1983 और टाइम ऑफ बर्थ है 2:10 इन द आफ्टरनून, और स्लो के पास उनका जन्म हुआ है। हाँ जी, आप उनके बारे में जानना क्या चाहती हैं? जी उनकी एजुकेशन और उनके कैरियर के बारे में। ओके, पहला सवाल आपका क्या है? मेरा पहला सवाल ये है कि इनकी एजुकेशन में जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये कब खत्म होंगी?
ये क्वालिफिकेशन कौन सी ले रहे हैं, क्या पढ़ाई क्या कर रहे हैं? इन्होंने मास्टर्स किया है इसमें मैथमेटिक्स में, और इस वक्त ये पीएचडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। लेकिन पीएचडी में कुछ जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ ये प्रॉब्लम से भी कब तक खत्म होंगी। देखिए जी, ये 2 जून के बाद टाइम काफी अच्छा है। अच्छा जी। तो उसमें ये जो टाइम चल रहा है 2 जून के बाद, क्योंकि जो उनकी जो पीएचडी है, क्या उसका जो टाइम है जी उनका, अभी ये थीसिस वगैरह लिख दिया है, लिख रहे हैं, क्या है? जी नहीं, अभी तो ये सेकंड ईयर है। 2nd ईयर है, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये है कि 3rd जून के बाद टाइम ठीक है इनका। अच्छा जी। लेकिन जो आप कह रही हैं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स इनके और इनके एडवाइजर के बीच में है, या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसके बीच में प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रोजेक्ट नहीं दिया गया इनको, लेकिन काम करवा रहे हैं और सपोर्ट नहीं मिल रही उनको। लेकिन ये जो अभी जो टाइम चल रहा है, अगर ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ही देखें जी। तो टाइम तो कोई इतना बुरा नहीं है। लेकिन बहुत परेशानी है। हाँ, परेशानी है, जी वो मैं उसको नहीं नकारूंगा कि परेशानी नहीं है, परेशानी तो है, वो मानता हूं। लेकिन यह है कि अभी जो टाइम वैसे जा रहा है उस हिसाब से 2 फरवरी 2012 से लेके जून 2013 तक बृहस्पति की महादशा है, चंद्रमा की अरध दशा है। जी। अच्छा जी। अच्छा, वो तो टाइम अपने आप में, हम उसको कुंडली में भी वो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है, अगर हम इनकी अकेला अगर हम पूरा उस पर डाल दें, माइक्रोस्कोप इनकी एजुकेशन के ऊपर डाल दें, मान लीजिए हम कुंडली के अंदर हम जो दशा को छोड़ दें और एजुकेशन के बारे में अगर बात करनी शुरू करें, यस देयर आर इश्यूज इन द क्वालिफिकेशन, उसके अंदर है, वो अपनी जगह अटल है। हाँ जी। तो ये मतलब कैसे, कब तक दूर होंगे, मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके मैं ये पास कहना चाहूंगा कि जो आप जून के बाद जो टाइम होगा इनके लिए काफी अच्छा होगा। अच्छा जी। हाँ, तो इनकी मतलब पीएचडी कुछ इस काबिल हो जाएगी? नहीं, जून के बाद इश्यूज वो नहीं है, इश्यूज जो जैसे पहले थे, जो कुछ मैं आपको उपाय दे देता हूँ, उससे सपोर्ट सिस्टम इनका डेवलप कर लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अगर थोड़ा इनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। हाँ जी, चाहिए तो है। देखें उसका सेकंड ईयर आ गया, उनको प्रोजेक्ट अभी तक नहीं दिया, और अगर प्रोजेक्ट नहीं होगा, कभी इधर से करवाते हैं कभी उधर से करवाते हैं, तो बच्चा तो परेशान होगा। नहीं, वो अपनी जगह जो आप कह रही हैं वो 100% ठीक है। जी। उसमें कोई वो है, उसमें कोई वो नहीं, मैं कहूँगा कि वो नहीं है। लेकिन जो इनका टाइम, जिसे हम कहेंगे जो इनका टफ टाइम है, वो असल में होगा, वो टफ टाइम होगा मई 2014 के बाद। अच्छा, वो क्यों जी? वो इसका कि उसमें यह है कि उसमें राहु की अरदशा आनी है, और राहु की अरदशा होगी, राहु इनके जो एजुकेशन, जो पढ़ाई का घर है उसको देख रहा है। हाँ जी। तो मैं इनको ये भी कहना चाहूंगा कि जब आप पीएचडी कर रहे हैं, मेक श्योर ये भी करिए कि आपके मेंटर के साथ आपके जो टीचर्स हैं, एडवाइजर हैं, हुएवर दे आर, उसमें कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप ना हो और किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू ना हो। अच्छा जी। क्योंकि उस पीरियड में लोगों के साथ एनिमोसिटी डेवलप हो जाती है, उस पीरियड में ऐसे जैसे कुंडली इनकी है कि उसमें अपोजिशन बहुत हो जाती है। जिन लोग, पोजीशन तो हमेशा से रही है। हाँ, उसको ये होगा कि जिन लोगों के पावर होगी, अथॉरिटी होगी, वही आपको तंग करना शुरू कर देंगे। ऑफ कोर्स वो
अभी भी कर रहे हैं। हाँ, वही आपको एक नया लेसन पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे हर एक, जैसे कोई सामने बैठा इंसान है, वो आपकी हर बात को प्रेस्टीज बना रहा है, हर बात को अपना पर्सनल इशू बना रहा है कि भाई हमने पता नहीं ये कौन छोकरा आ गया है, ये तंग करने आ गया है, इसकी में ऐसी की तैसी है। मतलब जबरदस्ती हम अपनी ओर से एक एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट हम उसको अपनी राय देना चाहते हैं, लेकिन जो सामने बैठा है वो उसको अपना, आपने मेरी इंसल्ट कर दी है, ये ऐसा है। तो कई बार लोग ऐसा नाक रब करना शुरू कर देते हैं जमीन के ऊपर। उसके थोड़ा इनको मैं सपोर्ट सिस्टम इनको देता हूँ, वो सपोर्ट लेंगे। उसके बिना अब सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर इश्यूज ना हो। हाँ जी, बिल्कुल। चैलेंजेस हो, मानता हूँ, चैलेंजेस लाइफ के अंदर चैलेंजेस होने हैं, वो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन चैलेंजेस हो, लेकिन हमारे अंदर वो ताकत भी हो कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनको डील कर लें। बिल्कुल। ये नहीं है कि हर ऐरा गहरा नत्थु गहरा में थप्पड़ लगा के चला जाए और उस्ताद बन जाए। नो, नथिंग लाइक दैट। हाँ, देखिए जो चैलेंजेस हैं वो तो वो एक्सेप्ट करता आया है और अभी भी कर रहा है। हाँ, वो तो ठीक जाहिर है। है उसमें उसका अपना फायदा है। हाँ। लेकिन बात ये है कि चैलेंजेस कोई ऐसा चैलेंज हो तो इंसान उसको ज्यादा खुशी से एक्सेप्ट करता है। जब आप पीएचडी कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता आप कर क्या रहे हैं, वो जो रोज एक पेपर उठा के दे दे वो कर लें आप। नहीं, वो है कि वो पॉलिटिकली कोई somebody is doing something, तो उस पर थोड़ा है, मैं उनको वो जो इनको थोड़ी सपोर्ट देते हैं, होपफुली विल बी फाइन। अच्छा जी, ठीक है इंशाल्लाह। तो मैं पंडित से एक चीज और पूछना चाहूंगी कि ये आपको पता है पीएचडी कर रहे हैं ताकि ये रिसर्च में जा सके। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या इनको पोस्ट डॉक्टरेट पोस्ट जो है वो मिल जाएगी, ये अपना रिसर्च जो है कर सकेंगे, कोई अपना रिसर्च में नाम कमा सकेंगे? मैं तो ये रिसर्च में नाम कमा सकते हैं, अच्छा जी, उसमें कोई दो राय नहीं। इनको बहुत ही अपने फील्ड के अंदर बहुत ही टॉप पे जाना है। अच्छा जी, इंशाल्लाह। मैथमेटिक्स का कौन सा फील्ड चूज किया है इन्होंने जी प्योर मैथमेटिक्स। हाँ, प्योर मैथमेटिक्स में नंबर थ्योरी है, टोपोलॉजी है, हाइड्रोडायनामिक्स है, क्या चूज किया है? जी, ज्योमेट्री। हाँ जी, जियोमेट्री। ज्योमेट्री। अच्छा अच्छा अच्छा, ओह वेल डन, वेरी नाइस। हाँ जी। तो क्या उसमें अपना ये कोई नाम बना सकेंगे? क्यों नहीं बना सकेंगे? मिल जाएगा। Of जाहिर है, देखिए रिसर्च में लोग इस वही जाते हैं जिनको जरा होता है कि भाई हम कोई नई चीज करें। देखिए, पीएचडी तभी को करेगा जिसको सब्जेक्ट के अंदर पैशन हो। जी, पैशन है तो मेरा हाँ, सब्जेक्ट के अंदर हमें इश्क हो बस और उसको हम 24 घंटे खाते पीते सोते हुए हम ब्रीद कर रहे हो, 24 घंटे हर पोर में वो हो, इश्क हो जाए। पंडित जी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही मुख्तसर बताऊंगी कि ये जो है बच्चा वो कहता है ये मेरी शादी समझ लें हो गई है इसके। हाँ, वही तो इश्क है, वही तो इश्क है। तो बस ये शादी का तो नाम नहीं लेते और ये बस एजुकेशन, ये ज्योमेट्री के पीछे पागल हूँ मैं। जी, आप रुकावटें जो है उनके लिए मुझे बताएं। और ये जो इसका सुपरवाइजर है, ये इसका रवैया अच्छा होना बहुत जरूरी है और उसने बहुत चाहत से इसको बुलाया है। आप यकीन करें, इसको कैम्ब्रिज से बुलाया उसने कि तुम मेरे साथ आगे पीएचडी करो, तुम ऑक्सफोर्ड ना जाओ, तुम मेरे पास आओ। अब क्या हो गया मुझे तो समझ ही नहीं आता। कुछ नहीं हुआ जी, बस थोड़ा बहुत कैसे है कि कोई बार ऐसे कहते हैं थोड़ा पासा उल्टा पड़ गया, वो बस थोड़ा टाइम होता है कई बार। अच्छा जी। हाँ, कई बार टाइम आपका है, वो लाइफ में शायद सब कुछ सीखना है। हाँ जी। और कई जो पार्ट हैं जिंदगी ने सिखाने हैं हमें, तो उसमें है कि ये शायद इनकी क्या कहते हैं वो पार्ट पहले नहीं सीखा था, शायद कुदरत अब सिखाना चाहती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। हाँ जी, बस अल्लाह ताला इनके दिल की मुराद पूरी कर दे, मैं तो यही कहती हूँ। मेरा तो देखिए एक ही बेटा है पंडित जी। तो मैं तो जाहिर है दिन रात जान लगाऊंगी कि ये जो ये चाहता है, जो इसने मेहनत अब तक की है, उसी में इसको फल मिले अल्लाह ताला। नहीं, मेहनत का फल मिल जाएगा इनको, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा जी। हाँ, अच्छा जी, चलिए अल्लाह ताला बेहतर करे। मैं इनको एक उपाय कुछ देना चाहता हूँ, वो सपोर्ट सिस्टम इनका बन जाएगा, जी जरूर बताइए। उससे वो इनका जो चाहते हैं वो इनको मिल जाएगा। इंशाल्लाह।
थोड़ी बहुत रुकावटें हैं, लेट्स डू इट। अच्छा जी ये तो मेरे लिए एक प्रोजेक्ट है, जी उसको अब प्रोजेक्ट की तरह ही लेना होगा और उसको उसी तरह से ही हमें करना होगा। इंशाल्लाह जरूर करेंगे जी। आप मुझे वो बता दें जो आप कहते हैं उपाय ये इनके लिए होने चाहिए। अब मैं कुछ उपाय देना चाहूंगा, उसको आप करवा दीजिए प्लीज। जी जरूर। हाँ जी इनको मैं ये कहूंगा कि 2 स्टोन अपने गले में पहने। जी एक है गोल्डन येलो सफायर जी बिल्कुल। और दूसरा है रियल पर्ल। रियल पर्ल एंड गोल्डन येलो सफायर। गोल्डन येलो सफायर एमरल्ड कट हो तो वो बहुत जरूरी है, राउंड ओवल शेप नहीं होना चाहिए। एमरल्ड कट हो तो अच्छी बात है, और गोल्डन येलो सफायर का वेट कम से कम 3 to 4 कैरेट हो, और रियल पर्ल का वेट कम से कम 2 मिनिमम 2 कैरेट हो। वो दोनों स्टोन चांदी के चौरस टुकड़े में जड़वा के इनको कहिए इनके गले में इनको पहनने चाहिए। अच्छा जी दूसरा एक उपाय देना चाहता हूं, उसको किसी भी तरह से करवा दें, बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मच इंपॉर्टेंट है। वो ये है, इनको ये कहिएगा कि ये बार बार इनको कहिए कि आटा और शुगर, जी आटा और शुगर दोनों को जहां पे लंगर वगैरह लगता हो वहां दान करवा दे, ज़कात में दे दे, कितना जो आप अफोर्ड कर सकें। जी तो किस दिन करवाना है? और किसी भी दिन। किसी भी दिन। अच्छा जी। एक उपाय और भी देना चाहता हूं उनको कि चांदी का ग्लास बनवा दीजिए। चांदी का गिलास ये हाँ। कहाँ से बनवा? ये ज्वेलर से ही बनेगा? आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। इनको कहिए चाय कॉफी पानी जूस उसी में पीना है। अच्छा जी वो जो चाय कॉफी पानी और जूस उसी में पीना है, बहुत जरूरी है। ठीक है जी। और एक उनको ये कहूंगा कि किचन में खाना खाया करें, अच्छा जी ठीक है। वो बहुत जरूरी है। अच्छा जी ठीक है। एक इनको मैं जैसे कहते हैं कि हम अपनी जुबान में कहेंगे कि इनको मैं अपनी ओर से एक उपाय देना चाहता हूं, जो एस्ट्रोलॉजी की अपनी एक टास्क है। मिट्टी का घड़ा लीजिए, जी कौन सा? क्ले पॉट ले लीजिए, अच्छा जी। अच्छा मिट्टी का घड़ा क्ले पॉट ले लीजिए, हाँ जी उसको पानी से भर लीजिए, ठीक है जी। उसके मुंह के ऊपर फ्रेश कोकोनट रख लीजिए। अच्छा जी ठीक है। जब कोकोनट आपका ड्राई हो जाए 15-20 दिनों के बाद जी उसको झाड़ियों में रख दें, लेकिन नया कोकोनट वहां लाके रख दें। अच्छा जी फ्रेश कोकोनट ही रखना है, मिट्टी के घड़े के ऊपर कवर कर दें, और एवरीडे घड़े का पानी चेक करते जाएं। जी। जितना पानी उसका कम हो जाए उतना पानी उसमें और डाल दें। अच्छा जी ठीक है। लेकिन एक इनको एक जैसे कहते हैं टास्क है अपनी ओर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, उनको करते रहना चाहिए। वो ये है कि सरसों के तेल की 1 लीटर की बोतल हाँ जी अपने बेड के पास रखें, ठीक है जी। उसको पड़ा रहने दें 1 हफ्ता, अच्छा जी और सैटरडे मॉर्निंग टाइम हो 5 से 7 का, हाँ जी उसको कच्ची जमीन पे गिरा दें। अच्छा जी ठीक है। या ठीक है जी। ये उपाय 11 सैटरडेज करना है। कौन सा ये जो ऑयल वाला है जी? जी हाँ, अच्छा जी ठीक है। कच्ची जमीन पे गिराएं, जैसे खेत हो, खलियान हो या कोई पार्क हो। लेकिन ये इससे ये होगा एजुकेशनल हिकअप्स, हाँ जी। उसकी जो सिचुएशंस है वो बदल जाएगी। अच्छा खुदा करे। एक है इनका रिजर्व टास्क है, वो अपनी ओर से करें अगर कर सकते हैं। जी चने की दाल हाँ जी। जल प्रवाह करवा दें। वो क्या जी मतलब? चने की दाल हाँ जी। पानी में बहानी है। अच्छा जी ठीक है। वो तो जी इंशाल्लाह। किस दिन करनी है ये बता दें। दिन होना चाहिए मंडे का। मंडे का? हाँ। अच्छा जी ठीक है। इंशाल्लाह कल ही कर देंगे। उसमें ये होगा कि हम एजुकेशन को कंफर्ट जोन में लेके आना चाहते हैं। अच्छा जी हम एजुकेशन को कॉन्फ्लिक्टिंग जोन से निकाल के कंफर्ट जोन पे ले जाएंगे। ठीक है जी समझ गए। हाँ, नहीं तो ये ना हो कि मैं कर रहा हूँ पीएचडी तो यहाँ तो ड्रामा शुरू हो गया पूरा, जी मतलब
कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई इनकरेज नहीं कर रहा, लोग उल्टी अपनी ओर से अपनी चालें चल रहे हैं, तो हम बैठे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जी, यही सबसे बड़ा मसला है। वो एक एक मिनट को रोता है मेरे पास बैठ के। आप बताइए, इतना बड़ा बच्चा इतना परेशान, उसने तो कभी मुझे तंग ही नहीं किया, पूछा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं होता था क्या बैठा पड़ रहा है। लेकिन अब हर रोज हर वक्त वो मेरे पास बैठा रो रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे जो देते हैं वो मेरा काम का ही नहीं है, वो मैंने किया ही रुकावटें हैं। चलो अब ये है कि ये खुदा करेगा तो ये सारी रुकावटें भी खत्म हो जाएंगी। अल्लाह के शायद थोड़ा टेस्ट है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जून के बाद इनके रास्ते आसान होंगे इंशाल्लाह। पंडित जी, आपने मुझे ये दाल का कहा है कि मैं कितने मंडेज करूं? ये आप 4 मंडे कर दीजिए। 4 मंडे, ठीक है जी। अगर ये खुद करेंगे तो ज्यादा हेल्प हो जाएगी। जी, अगर ये साहब खुद करेंगे तो ज्यादा हेल्प होगी। ये खुद करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जैसे किसी तरह मेंटली तौर पे एजुकेशनल को हम कंफर्ट जोन में लेके आना चाहते हैं। जी, बहुत जरूरी है ये। हाँ, यहाँ हमने कोई इलेक्शन थोड़ी जीतना है, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। एक बच्चा गया है पढ़ने तो उसको पढ़ाई मुकम्मल करके अपनी जिंदगी का मकसद हासिल करना है। बिल्कुल जी। तो यहाँ हम किसी की ईगो को तो घास नहीं डाल रहे, ना किसी की ईगो को चैलेंज कर रहे हैं भाई। जी बिल्कुल है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें गाइड कीजिए, हमें हमारा रास्ता दिखाइए, हमें एडवाइस कीजिए एंड जस्ट डू योर जॉब। जी। देखिए पंडित जी, जब ये पीएचडी पे इसको इतना मजबूर करके मतलब बुलाया गया कि तुम ऑक्सफोर्ड ना जाओ, तुम मेरे पास आओ, तो ये बच्चे ने ये सोचा कि मुझे ये कहने लगा कि मैं अब आपके साथ 4 साल के बाद बैठूंगा। ये इतनी जिसे कहते हैं लगन लेके गया था। इसने कहा मैं 4 साल आपसे बात नहीं करूंगा, आप समझे मेरी शादी हो गई, मैं होऊंगा और किताब में। लेकिन ये इतना मायूस हुआ, आपको मैं बता नहीं सकती है, मायूस है बेचारा कि मैं आपको क्या बताऊं। बस ये है कि कई बार लोगों को ये होता है कि अपना एक जैसे कई बार लोग कई बार इंस्टीट्यूशन में होता है कि लोग पाठ पढ़ाना सिखाना टीच करना चाहते हैं लेसन, या अपनी ओर से लगे रहते हैं कई बार। वो असल में ये जो इनके सुपरवाइजर है वो ये चाहते थे कि तुम मेरे पास अब आ गए हो, अब तुम फंस गए। दोबारा कॉल करें जी, टाइम आपका हो गया था, दोबारा आए फिर मैं बात करूंगा। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो जी पंडित जी, मेरा टेलीफोन कट गया। हाँ जी, बात कीजिए। जी, मैं आपसे पहले ही बात कर रही थी अपने बेटे की। जी जी, तो पंडित जी आप मुझे उपाय बता रहे थे, अगर कोई और उपाय है तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, तो मैं फिर वो भी कर दूं। मैं अपने बेटे की बात आपसे कर। हाँ जी, इनका एक उपाय है, अगर हो सके कम से कम 6 लड़कियां जिनकी उम्र 13 साल से कम हो या 11 साल से कम हो, या 12 ऐसी बच्चियां जिनकी उम्र 11 साल से कम हो, उनको ग्रीन ड्रेसेस पैसे डोनेट करवा दें। अच्छा, ठीक है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इनको अपने गले में वो जो मैंने 2 स्टोन रिकमेंड किए हैं, गोल्डन येलो सफायर एंड रियल पर्ल। जी, गोल्डन सफायर जो है वो तो इन्होंने पहना हुआ चांदी में। हाँ, लेकिन रियल पर्ल साथ में पहनना है ताकि इनका सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो, क्योंकि आगे जाके सिचुएशन इनकी ये होगी कि अगर कुंडली में भी देखा जाए पॉलिटिकल सिचुएशन से इनको डोमिनेट किया जा सकता है इन फ्यूचर। आपको ये रखना, हमें ये रखना है कि इनका अपना ही इकबाल इतना बुलंद हो कि कोई इनको डोमिनेट ही ना कर सके। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमें अपनी तैयारी करनी है, हम लोगों के पीछे थोड़ी भागेंगे। जी बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ से अगर हम छोड़ेंगे कहीं और चले जाएंगे, लोग तो वहाँ भी वही होंगे। जी बिल्कुल। ठीक है ना। हमें एंड ऑफ द डे वो सब चीजें हमें अपनी ओर से इनको मून और जुपिटर को इतनी राइजिंग पे लेके जाना है कि जो सपोर्ट हमें मिलेगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इसको करने से मैं इसके सन और मार्स को एक्टिवेट कर दूंगा। अगर सन और मार्स एक्टिवेट हो गए फिर कोई इशू नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अथॉरिटी ही आप पे मेहरबान है, अथॉरिटी ही आपको सपोर्ट करना चाहती है। फिर मुकद्दर के रास्ते, मुकद्दर के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। इंशाल्लाह जी। तो उस हिसाब से जो चाहते हैं उनको मिल जाएगा। जी अल्लाह करे। पंडित जी, आप मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे, मैं पिछले 10 साल से बहुत परेशान
परेशान हूँ इसी बच्चे के लिए। हाँ जी। आप मुझे थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि कब मेरी और इसकी जिंदगी में सुकून का वक्त आएगा? देखिए जी, 2014 मई से लेके अक्टूबर 2016 का जो टाइम है जी। वो चैलेंजेस होंगे, उसमें अच्छा जी। टफ टाइम होगा। क्या होगा जी? टफ टाइम होगा, अच्छा जी। चैलेंजेस होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो ये तो मुझे पहले भी मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने कहा था 14 और 15 आपके हक में बहुत अच्छे होंगे इनके। नहीं, 14 और 15 टफ टाइम होगा। अच्छा, मुझे हाँ। तो बिल्कुल इससे ऑपोजिट बताया गया है। जो जिन्होंने बताया, उन्होंने अपनी समझ से बताया, मैंने अपनी समझ से बताना है आपको। ठीक है जी। ठीक। हर एक की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि ये जो अभी जो टाइम चल रहा है, जी। जो इनका जो टफ टाइम भी गुजरा है वो उसीलिए गुजरा है क्योंकि वही प्लैनेट्स पहले थे, हाँ जी। वही डोमिनेट कर रहे थे। अच्छा जी। अगर हम देखें, अगर हम उनको अर्धदशाओं से बात देखेंगे तो वो तो ठीक है, टाइम ठीक था, लेकिन वही प्लैनेट वहां डोमिनेट कर रहे थे। अच्छा जी। हाँ, मैंने उसी के हिसाब से देख रहा हूँ कि वही जो प्लैनेट है वो आगे जाके भी हमें मिल जाएंगे, लेकिन वो जो 2 साल होंगे, कम से कम 2014 मई से लेके 2016 अक्टूबर तक का जो टाइम है, हाँ जी। उसमें इनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनना है। अच्छा जी। उसमें लोगों के साथ पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा जी। वो तो स्टूडेंट लाइफ में भी इनके साथ बहुत ज्यादा रहे हैं, पता हाँ, नहीं क्यों से बहुत उसमें अच्छे। लोग जैसे आपको कोई ना कोई, जैसे पंजाबी च कहते हैं, कोई ना कोई कुत्ता बिल्ला चिमड़िया रहूगा। अच्छा। आप हम किसी तरह हमारे पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल चल रहा है, हाँ जी। या कोई अपोजिशन है, या कोई डोमिनेशन है, या ये है वो है, वो इश्यू चलता रहेगा। तो 16 के बाद कुछ 16 फिर मैं वही कह रहा हूँ, 16 के बाद का जो टाइम है जी। वो उनके पास 19 ईयर्स हैं। अच्छा जी। जितनी ज्यादा नॉलेज, जितनी बड़ी एबिलिटी, उतना बड़ा स्टेटस। अच्छा जी, माशाल्लाह। वो एकदम से आपकी काबिलियत क्या है, आप हो क्या, जी। आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, जी। जितना बड़ी नॉलेज होगी, जितना बड़ा आपकी एबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा आपके पास स्किल होगी, उतना बड़ा स्टेटस। हाँ जी। फिर उसमें यह है कि आप, वो पीरियड ही आपका है। अच्छा जी, खुदा करे। हाँ, लेकिन उस पीरियड के दौरान ये भी देखना होगा कि आपको पेट की कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे या मेरे बेटे को? इसको बेटे की बात कर रहा हूं जी। अच्छा जी, ठीक है। बेटे की बात कर रहे हैं, बेटे की जन्म कुंडली या बेटे की जन्म कुंडली से बात कर रहे हैं? अच्छा जी, मुझे आपने कहा ना आपसे तो नहीं, आपका मतलब ये जो बेटा है, अच्छा जी, बिल्कुल समझ। पेट की प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, ठीक है। उनका पेट का ध्यान रखना है, हेल्थ वाइज टमी का ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक है। अच्छा जी। तो उसमें वही पीरियड होगा, 19 साल का पीरियड होगा, वो तरक्की का, प्रॉस्पेरिटी का, वो सारा होगा। लेकिन उसमें जितनी बड़ी नॉलेज, जितनी बड़ी स्किल, जितनी बड़ी प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स जो हमारे हैं, जो स्किल है, नॉलेज है, वो उतना बड़ा इनको स्टेटस मिल जाएगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो पंडित जी, इनकी थोड़ा सा ध्यान इनका शादी की तरफ भी होना चाहिए। मैं चली गई तो फिर उसके बाद ये देखिए जी, 2016 के बाद ही शादी का टाइम है जी इनका। अच्छा जी। अच्छा। क्योंकि वही पीरियड के दौरान, वो टाइम 2016 अक्टूबर के बाद, अच्छा जी। वो टाइम जो है 2016 अक्टूबर से लेके अक्टूबर 2019 का जो पीरियड है, वही पीरियड मैरिज का है। अच्छा जी, ठीक है जी, अल्लाह बेहतर करे इनके लिए। हाँ, एक उपाय मैं इनको ये देना चाहूंगा, एक उस पीरियड में ज्यादा जरूरी होगा उपाय, या तो अपने घर में काले शाह रंग का कुत्ता पाले। हाँ जी, वो तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन वो कई बार लोगों को यह है कि मैं नहीं पाल सकते, जो भी है, तो या आप ये उस पीरियड में ये करना होगा कि आप एक रूटीन बनाएं कि किसी भी डॉग होम को वंस ए मंथ डॉग फीड जो चिकन बेस्ड हो, वो वंस ए मंथ डोनेट कर दे। अच्छा जी, वो कर सकते हैं। हाँ, उसमें यह है कि महीने में एक बार 10-15 किलो का बैग ले लें, वो किसी डॉग होम जाके डोनेट कर दे। अच्छा जी, तो ये किस दौरान में आप बता रहे हैं?
14 से 16 के 16 से 2016 से लेके 2035 का पीरियड वही है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन वो ये उपाय जो डॉग फीड वाला है ये अब भी करें तो उनको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जी अभी ये कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ, उसमें 1 से मंथ इसको करें, ओके, उससे इनको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ये कितनी दफा करना है? ये देखिए जी, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लैनेट है वो डोमिनेट कर रहा है, हाँ जी। हमें उसके डोमिनेशन से बचना है। हाँ जी। तो एक टैक्स की तरह है कि 1 से मंथ हम डॉग, या तो हम घर में कुत्ता पाले काले रंग का, जी तो वो सपोर्ट सिस्टम हमें मिल जाएगी, जी उसकी सेवा जो हम करेंगे तो उसका बहुत बड़ा एक ऐसे सबाब हमें मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हम घर में वो नहीं कर सकते तो डॉग होम जाके डॉग फीड डोनेट कर दे, अच्छा जी ठीक है। वो जरूरी ये है। मैं पूछ रही थी कितने देर तक करते रहे हम? 1 से मंथ करना है आपको, आप देखिए। अच्छा जी, मतलब 2 महीने 3 महीने नहीं। 4 जितना भी है। ये थोड़ा लंबा टाइम करना होगा जी। अच्छा जी, अब मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ना कि आप एग्जैक्ट टाइम बता दें, हम उतनी देर जरूर। हमें ये कहना है कि अगर हमें हेल्दी रहना है, प्रोफेशनल रहना है, लाइफ लॉन्ग कीजिए। हाँ जी ठीक है। अगर हमने सेहत हमने ठीक रखनी है और हमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से कुछ बनना है लाइफ के अंदर, तो ये उपाय आप लाइफ लॉन्ग आपको करना चाहिए। नहीं ठीक है जी, बिल्कुल ठीक सिंपल। है। हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो कि वो एक अपनी ओर से वो कई किस्म के इश्यूज से हमें बचाता जाएगा। इंशाल्लाह जरूर जी, ये जरूर हाँ। करेंगे। हाँ जी पंडित जी बहुत आपका शुक्रिया। No, no, मैं not at अगर all. कभी जरूरत पड़ी तो फिर भी आपसे बात करूंगी। हाँ जी, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। थैंक यू वेरी ओके जी, थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू, बाय बाय। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं अपने बेटे बारे पूछना। हाँ जी, बेटे का नाम की है? अमत है, मैं लास्ट टाइम पूछा सी थानू। की नाम है जी? अमत अमृत है? जी अमित है? एंड डेट ऑफ बर्थ है कि 13 मार्च 87। हाँ जी, अमित 13 मार्च 87 शाम ਦੇ 7:12 है जी और लंदन च पैदा हुए है। हाँ जी। हाँ जी, गल करो। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੂਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, 2-4 ਵੀਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ। ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਰਦਾ। ओके जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ लेकिन मैं इन्होंने इस टाइम अपना बिजनेस करने वास्ते नहीं कहूँगा, ਹਾਂਜੀ क्योंकि बिजनेस इन्हों का इस आ टाइम के मुताबिक जो टाइम चल रहा है, मैं इन्हों ये नहीं कहूँगा भी तुम अपने पैसे ला के बिजनेस शुरू कर लो। ਹਾਂਜੀ मैं नहीं ये कहूँगा कभी, क्योंकि ये इन्होंने इदा किया तो इन्हों के जड़ा इन्हों स्ट्रगल बहुत करना पएगा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜੋਬ ਇਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇਗੀ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਤੇ। मैं इन्हों कुछ उपाय देवांगा, तुसी इन्हों दे करवाओ। मैं मेरा एक सवाल है थोड़े तो, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ मेरे लिए पूछना जरूरी है। ਹਾਂਜੀ। ये किसी रिलेशनशिप तो नहीं है? ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। हाँ जी, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ओके ओके। जे अमित भाजी रिलेशनशिप च होए फिर पढ़ाई पूरी नहीं होएगी? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। बस फिर ठीक है। फिर ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਗਲੀਕ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਗਲੀਕ ਆ ਕੀ ਆ? मैं इन्होंने जरा जस्ट 30 तो मार्च मैं तुम दस दिना जी इन्होंने बारे 30 तो मार्च 87 ਹਾਂਜੀ शाम के 7:12। ਹਾਂਜੀ।
हाँ जी मंगलीक तो हैगे है। ਹਾਂਜੀ हाँ जी गल करो। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੈਂਡਸ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜ 3 ਬੈਂਡਸ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ हाँ वो बहुत जरूरी है। फाइन गोल्ड, फाइन सिल्वर और रेड गोल्ड वो पानी बहुत जरूरी है, ਅੱਛਾ वो क्वाइट इंपॉर्टेंट है। ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦਾਨ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦਾ ਡੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਦੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਡਾਲ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ? ਆਟਾ ਮੂੰਗੀ ਸਾਬਤ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ 2-2 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ 8-8 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਤੱਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ weight ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਆਲਰਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆ ਹੁਣ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿ 1200 ਗ੍ਰਾਮ ਜੌਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਲਗਾਤਾਰ 43 ਦਿਨ। 43 ਹਾਂ 1200 ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਲੇ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਨੈਕਸਟ 43 ਡੇਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ 1200 ਗ੍ਰਾਮ 1200 ਗ੍ਰਾਮ ਜੌਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ 43 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ 3 ਕਿਲੋ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ, ਹਾਂਜੀ 3 ਕਿਲੋ ਹਲਦੀ, ਹਲਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਵਾਰੀ। 7 अच्छा जी चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो हाँ जी हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ जी बेटी की शादी के, बेटी का नाम क्या है? स्टार्ट विथ एच। नहीं पूरा नाम दीजिए ना। इनकी ही ना HINA। डेट ऑफ बर्थ? 3/12/85। टाइम ऑफ बर्थ? 14:24 PM लंदन। हाँ जी बात कीजिए। हाँ जी बस उनकी शादी की चिंता लगी कि कब होगी। बहुत सारे लड़के देख रहे हैं लेकिन पता नहीं कहीं कुंडली में मैच हो रही, कहीं कुछ हो रहा है। 3rd of December 85 1424 लंदन। 1624 सॉरी नॉट 14। ओके 1624 हाँ जी शाम के 4:24। परफेक्ट। ओके अभी भी इनकी मैरिज विंडो तो खुली है जी। खुली है लेकिन कहीं पता नहीं क्यों कुछ नहीं हो रहा है हाल। कब तक है योग?
मैरिज विंडो तो खुली है इनकी। हाँ, लेकिन कब तक योग है? ये पिछले साल मई से लेके अब तक कितने रिश्ते आए इनको? इनको काफी रिश्ते आए, लेकिन कुंडलियां कहीं मैच नहीं हो रही है। कहीं मैनचेस्टर से आ रहा है, कहीं अमेरिका से आ रहे रिश्ते। रिश्ते बड़े अच्छे से घर के आते हैं, लेकिन अमेरिका जाना नहीं है, मैनचेस्टर जाना नहीं है। अब ये तो एक प्रोसेस है, उसमें से गुजरना ही होगा जी इनको। शी डजंट माइंड गोइंग टू इंडिया, बिकॉज इंडिया पढ़ी लिखी है वो, लेकिन पता नहीं कहीं कुछ जम नहीं रहा है। वाई डिले क्यों हो रहा है इतना? नहीं, अब उस मोड में है वो मोड है इनका। जो मैरिज विंडो इनकी अप्रैल 2015 तक खुली है। अच्छा, हाँ, लेकिन आपके हिसाब से कब होगी और कब होनी चाहिए? मेरे हिसाब डिले क्यों है? अगर रिश्ते अच्छे अच्छे आ रहे हैं तो डिले क्यों हो रहा है? हमें तो कुंडली, लड़कों की कुंडलियां दिखवा के हम करते हैं, लेकिन यहाँ कई लड़के रिश्ते ऐसे भी आए जहाँ कुंडलियां वो मदर्स को पता भी नहीं है कि टाइम ऑफ बर्थ क्या है। तो फिर क्या करें ऐसे हाल में? नहीं, ऐसा है कि आपकी तो बेटी है। हाँ, वही ना। आपको अपने बेटी की फ्यूचर, उनकी वेलबींग, उनकी फ्यूचर की सिक्योरिटी के बारे में आपको तो डिसीजन उसी हिसाब से बनाना है। ये तो है नहीं कि आपने, हम लोग फिर आगे बढ़ाते ही नहीं बात। नहीं भी ठीक है, डेस्परेशन में आके डिसीजन ना बनाइए। नहीं, लेकिन फिर डिले होता जा रहा है। डिले, अब जो ये लाइफ डिसीजन है, ये ना हो कि आप जल्दी डिले हो रहा है उस पर इतनी ज्यादा कर ले तो बाद में आप शादी करके उसको कहें जी हाँ अब डिवोर्स करेंगे, सेपरेशन करेंगे। नो, नहीं ऐसे तो नहीं, इसीलिए तो होल्ड कर रहे। हाँ, उस पे है कि अब ये डिसीजन है, ये लाइफ का डिसीजन है। ये तो है नहीं कि हमने चलो जी ये कोई बात नहीं बदल लेते हैं, या तो लाइफ का डिसीजन है। इस पे तो आपको वो सारे जो प्रिकॉशंस है, प्रिवेंशंस है, केयर है, वो लेनी पड़ेगी। नहीं, वही तो इसीलिए तो डिले वो उस पे अब डिले, अब वो कब इसका डिले जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, उस पे दो राय ना रखें। अच्छा, हाँ, उस पे ज्यादा अपने आप को वो मत सोचे कि हाय हो गए, ऐसा हो गया। उस पे छोड़े उसको, वो छोड़िए उसको। ठीक है, वो फीलिंग आपकी है, वो मानता हूँ, वो डिले हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जब इनका टाइम ओके, अब इनका चैप्टर शुरू हो गया है शादी का, वो शुरू हुआ है मई लास्ट ईयर से। अच्छा, और ये मैरिज विंडो खुली रहेगी 2015 अप्रैल तक। अच्छा, तो इस पीरियड में आपको अपनी जांच परख सब कुछ देखना होगा। मैं लोगों को कहता रहता हूँ, शादी करने से पहले आंखें खोल के रखो, कान खोल के रखो, ऑब्जर्वर अच्छे बनो, जल्दबाजी ना करो, इमोशनल ना बनो, प्रैक्टिकल बनो। वो तो है, आम लोगों ने शादी से पहले आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद हैं, मुझे और पता है। हाँ, यहाँ ना भाई सब प्रॉब्लम बड़ा है कि हाँ, यहाँ के इमोशन- I'm from India, तो मैं तो ये सब कुंडली वुंडली देख के हमारी शादियां भी ऐसे करी है, लेकिन यहाँ तो कई मदरों को टाइम भी नहीं पता। बड़े अच्छे से घर के रिश्ते आते हैं, लेकिन उसको अपने खुद के बेटों के बर्थ टाइम भी नहीं पता, तो अब कैसे बात पड़ा है? अब ये सारे सभी को तो ऐसा हाल नहीं है, किसी सभी। नहीं, हमारे कम्युनिटी में तो बहुत सारे ऐसे जो नहीं बोले क्या ये अब बात ये है, ऐसा है, क्या? जो वट एवर इट इज सिंपल एज दैट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। उस पे वो तो है, लेकिन अब आपको लगता है कि 15 अप्रैल 2015 तक उसके योग है? हाँ, उस पीरियड 25 अप्रैल 2015 तक वो जो इनकी विंडो है, वो मई लास्ट ईयर से लेके अप्रैल 25 2015 तक इस विंडो में शादी होनी चाहिए। अच्छा, और फिर इसका भविष्य, आई मीन व्हाट डू यू से, अच्छा है क्या? उसको घर अच्छा मिलेगा, वर घर दोनों? घर अच्छा मिलेगा, लेकिन रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज बहुत होंगे, आउटसाइड इन्फ्लुएंस बहुत होगा, लोगों की इंटरफियरेंस बहुत होगी, थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस होगी। वो एक इशू है अपने आप में। जिनके साथ शादी होगी उनकी अपनी पर्सनालिटी के अंदर स्ट्रेंथ बहुत होगी, और कई थोड़ा एटीट्यूड भी होगा, थोड़ी मूड स्विंग्स भी होंगी, कई बार स्टबर्न नेचर के होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे। इनको भी उनके हिसाब से अमालगमेशन करनी होगी, ट्यूनिंग करनी होगी। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज है आगे? कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कंप्रोमाइज होता नहीं है, करना पड़ता है। हाँ, ये है कि इनकी मैरिज रिलेशनशिप के अंदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस बहुत होगा, इंटरफेरेंस बहुत होगी। अच्छा, हाँ, उनको आपको उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। अच्छा, डिवोर्स तो नहीं है ना आगे?
देखियो जी, अभी तो शादी नहीं हुई, अब डिवोर्स की बात क्यों कर रही नहीं हैं? ऐसे यानी ब्रेकअप वेकअप तो नहीं है ना आगे? अब अगर हम आउटसाइड इन्फ्लुएंस को नहीं डील करते अच्छी तरह से और आउटसाइड इन्फ्लुएंस की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है तो फिर लोगों के रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। उसके उपाय क्या करें अभी से आप बताएं। आज माहौल ऐसा है ना कि पता नहीं कहाँ कहाँ ध्यान रखें। अरे शाबाश तेरा। अब बच्चों को ट्यूनिंग तो करना पड़ता है ना, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते ट्यूनिंग तो हैं। बहुत जरूरी है मैडम, ट्यूनिंग के बिना काम कैसे चलेगा? लेकिन आप बताइए हैं, ट्यूनिंग के बिना काम कैसे चलेगा? अभी शादी भी नहीं हुई और टेंशन होने लग रहा है। अरे टेंशन की देखिए, शादी टेंशन नहीं है, शादी प्रैक्टिकल लोगों का काम है, रिस्पॉन्सिबल लोगों का काम है। शादी हर अरे गहरे नत्थु करे का काम आजकल नहीं है। नहीं है लेकिन अभी नहीं है ना? अब- हाँ, अब हम कमिटमेंट तो कर लेना, सही सिखा कमिटमेंट कर लेना, कमिटमेंट को ऑनर करना, यही मैरिज है बस। लेकिन आगे क्या करना चाहिए? एक तो है कि ओके ओके, पहली बात, इनकी मैरिज के अंदर किसी से कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट नहीं लेना। अच्छा इनको शादी के अंदर कोई स्टील का बर्तन नहीं देना। अच्छा। इनको शादी के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस नहीं देने। ये ना हो कि इनको शगन मिले तो उस शगन से ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, स्टील अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस खरीद के बैठ जाए। इनको नेवी ब्लू कलर के गारमेंट्स नहीं देने। कौन से कलर के? नेवी ब्लू कलर के गारमेंट्स नहीं देने। अच्छा। हाँ, अब कुछ थोड़े है इश्यूज इनके शादी के अंदर, तो ये बात है। बाकी है कि इनको कोशिश की जाए अगर हो सके तो ये कोशिश ये की जाए कि रेड कलर का पिलो दीजिए और उसके अंदर सौंफ भर के दीजिए, वो सर के नीचे रख के सोएं। अभी की यानी अभी से करें इनको, उससे ये होगा कि हैसल्स नहीं होंगी, हरासमेंट नहीं होगी, टेंशन्स नहीं होगी, अनसिक्योरिटी नहीं होगी। तांबे का जग लें, कॉपर का जग लें, उसमें पानी भर के सर के पास रखें और सुबह उसी पानी से दांत साफ करें, उसी पानी से मुंह धोएं। ये जरूरी है इनके लिए। और बाकी ये है कि इनको लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में फाइन गोल्ड बैंड पहननी है विदाउट जॉइंट, बहुत जरूरी है। जी हाँ। बाकी ये है कि एक दो चीजें ऐसी भी हैं जो उनको इन द लॉन्ग रन करनी होगी। मेक श्योर करें कि जिस घर में शादी करके जाएं वहां पे कच्ची जगह जरूर हो, गार्डन हो, कच्ची जमीन जरूर हो। अच्छा। हाँ, बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अच्छा। कच्ची जमीन होगी जिस घर में तो उसमें इनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, रिलेशनशिप भी ठीक रहेगा। कई बार लोगों के गार्डन लोग स्लैब्स लगवा देते हैं, कच्ची जमीन घर में बिल्कुल नहीं रखते। कई बार उसका असर फीमेल हेल्थ के ऊपर आ जाता है, अच्छा। फीमेल हैप्पीनेस के ऊपर आ जाता है। अच्छा, यानी ऊपर सेकंड थर्ड फ्लोर पे बिल्कुल फ्लैट ना हो, ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ा गार्डन हो पीछे। हाँ, कई बार अगर फ्लैट में रह रहे हैं तो आप अपने घर के अंदर आप क्ले पॉट रखें या गमले रख लें, उसमें फूल पौधे उगा लें। ये कर लें। आपके हिसाब से 2 साल के अंदर हो जानी चाहिए। हाँ, लेकिन शादी इनकी जिनसे होगी उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होगी, प्रोफेशनल आदमी होंगे, बहुत थोड़े खड़ूस भी होंगे, अच्छा। स्टबन नेचर के मालिक होंगे, मूड स्विंग्स बहुत होंगी, वेल प्रेजेंटेबल होंगे, एंटरप्रेन्योर टाइप के होंगे, बहुत आइडियाज होंगे, इन्फ्लुएंस बहुत होगा, थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर भी होगी। लेकिन ये है कि बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस बनी रहेगी। अच्छा। वो थोड़ा सा कई बार हमें अपने कंडक्ट से, बिहेवियर से, डिप्लोमेटिकली ऐसी सिचुएशंस को आपको डील करना होगा। हाँ, लेट्स प्रे, भगवान करे सब ठीक हो। होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अभी शादी का ही टाइम चल रहा है। अच्छा। चाहे आप लड़के देख रहे हैं, जो भी है वो पार्टन, एक आध लड़का, 1-2 लड़की अभी रिसेंट, लेकिन वो उसकी जैसे ने आपने कहा उसका मूड स्विंग है, वो 15 दिन में एक बार कभी फोन करता है, कभी नहीं करता। लड़का बड़ा अच्छा है, एंटरप्रेन्योर है, बड़ी पर्सनालिटी अच्छी है, बड़ा वेरी वेरी वेल ऑफ, अच्छे पढ़ाई लिखे ये वो सब कुछ है, लेकिन मूड स्विंग्स है, कभी महीने में एक बार फोन किया, कभी नहीं किया।
अब ये है कि ये जो पीरियड इनका वो चल रहा है, सॉरी, पीरियड उनका वही चल रहा है, मैरिज का पीरियड है, इस पीरियड में इनको किसी ने मिलना है, इस पीरियड में इनको प्रपोजल मिलेगी। जी हाँ, थोड़ा पॉजिटिव बने, बस ये वो बात तो है, वो तो है, भगवान करे बस शुभ शुभ बोले और शुभ शुभ काम होए। मैं तो हमेशा ही शुभ बोलता हूँ। वही ना, वही ना। नहीं नहीं, मैं खुद को भी बोल रही हूँ कि शुभ शुभ सोचे, शुभ शुभ काम होए। और जैसा आपका विजन होगा वैसी क्रिएशन हो जाएगी। वो तो है, वो तो है। विजन अपना ठीक रखें, अच्छा रखें, पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव और- रखें, हाँ बस, क्रिएटिव रखें। लेकिन ये भी है ना कि योग है कि नहीं है, तो 50 योग है। योग है, ये तो सुन के अच्छा लगा कि चलो योग तो है, योग तो है, योग है। दैट्स वंडरफुल, दैट्स That's वंडरफुल। one. थैंक यू सो मच प्रकाश, थैंक यू जी, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। चलता हूं, लौट के मिलूंगा कमिंग संडे दोपहर 12 बजे। थैंक यू।